Thalassemia Foundation, formerly known as Team PACT. So, Team BTF is committed towards a single cause, that is eradicating thalassemia. We work hard every day towards this cause and to promote awareness about the disorder. We have a great team of volunteers who too are committed to our cause. Our founder, also a thalassemia major who has experienced enormous problems as a result of the disorder and wants to ensure that no one else has to go through the same. That is why we are here. So, in the early days of our foundation, we held various thalassemia awareness sessions in setups like schools, universities, colleges, and private institutions, and we were able to reach over 6,000 people in just a span of 6 months through our thalassemia awareness and prevention programs. We switched to the online platform to spread the word and educate people after having such a positive reaction from the offline awareness programs. We were able to contact over 20,000 people via online media. So, BTF now offers both online and offline awareness sessions as well as webinars for our warriors. In the month of May, we also had our first successful blood donation camp, and BTF established India's first thalassemia community, a group dedicated solely to the thalassemia warriors. In partnership with the Vadodara Psychology Club, BTF has also initiated a self help group for thalassemia warriors. It is a self help group for thalassemia warriors and it's first of its kind. We've got a lot of positive feedback so far, and we are looking forward to reach our bigger goals. So please help us out, spread the news, and don't forget to donate blood because thalassemia warriors are having a really hard time in this pandemic due to the shortage of blood. So, introducing you to our facilitator, Dr. Lisa Balsara has completed her MBBS from JJMMC Devanagari, Karnataka, and her MD Pediatrics from DVVPF Medical College, Ahmednagar, Maharashtra. She has also enrolled into the Indian Academy of Pediatrics Fellowship. Over her tenure of 2 years, she was thoroughly trained for comprehensive care of thalassemia and other hematology and pediatric fields. She has many achievements in her career, one of which is that she was awarded Best Postgraduate in 2016 at DVVPF's Medical College. She has large variety of expertise in diagnosis and management, such as comprehensive thalassemia care, palliative care, platelet and coagulative care, pediatric leukemia and lymphomas, and many more. Her vision is to provide her services to each and every hematological patient. She has many goals for the future, and a few of her missions are to start a comprehensive thalassemia daycare to provide the best available treatments to thalassemia patients at affordable cost to form a hemophilic society. Now, I would like to call upon Dr. Lisa to take over the rest of the session. Thank you. गुड इवनिंग। सो एक और संडे की शाम हम लोग थैलेसीमिया को और जानने के लिए आज मिले हैं। सिंस हिंदी ही सबके लिए कंफर्टेबल रहता है, हम हिंदी में ही बात करेंगे रादर देन कंप्लीटली अनअवेयर रहना और सिर्फ इंग्लिश में बातें करना और किसी को ना समझ आना। तो हमने बहुत सोचा कि क्या अगला टॉपिक लिया जाए। हमने लास्ट टाइम हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसीमिया लिया था। फिर बूंद फाउंडेशन ने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर एक को थैलेसीमिया उतना ही समझे जितना उनको जरूरी हो, लेकिन उतना समझे जितना उनको रियली रियली जरूरी हो। सो वी थॉट कि कॉम्प्लिकेशंस पे जाने से पहले व्हाई नॉट वी डू इट कि नॉर्मल चीजें क्या होती है, फिर एबनॉर्मल चीजें क्या होती है, ये भी समझना जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे वापस से जूनियर केजी में जाके, बाल मंदिर में जाके कि एबीसी क्या होता है। लेकिन आज का एबीसी थोड़ा सा अलग रहेगा, वो थैलेसीमिया पे रहेगा। सो पहले तो हमने ए टू जेड तक सारे अल्फाबेट से एबीसीडी थैलेसीमिया के रूप में ये किया, लेकिन फिर हमने समझा कि ये लेक्चर ना बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ए टू जेड इटसेल्फ इज 26 अल्फाबेट्स। उसको अगर हर एक स्लाइड को एक्सप्लेन करना है तो हर एक स्लाइड को 2 से 3 स्लाइड एक्सप्लेन करना है, तो इट बिकम्स 100 और समथिंग लाइक दैट। सो हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम आधा लेक्चर पार्ट 1 के फॉर्म में लेंगे और उसका आधा लेक्चर हम पार्ट 2 में नेक्स्ट संडे को करेंगे। तो गणपति जी के आशीर्वाद से, गणपति बप्पा मोरया बोल के मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का सेमिनार। सो लेट्स लर्न एबीसी ऑफ थैलेसीमिया।
Is the slide visible, Anshul? Yes, ma'am. The first slide is there. Okay, fine. So I'll just. Okay. So, with the help of Boone Foundation, the initiative and supporter, let's learn ABC of thalassemia today. So, हमने हमेशा सीखा है A for apple. आज हम देखेंगे कि थैलेसीमिया में A for anemia, जो आप हमेशा से जो पहला ही सिम्टम जो डायग्नोसिस का हम देखते हैं अनीमिया, और दूसरा होता है एडहेरेंस. एडहेरेंस का मतलब ये है कि जो आपको ट्रीटमेंट दी गई है उस पे आप कैसे जड़े रहे. एडहेरेंस का मतलब उस चीज को फॉलो करना, अदर होके उसके साथ साथ चलना, उसको बोलते हैं एडहेरेंस. ठीक है, अभी हमने देखा है कि नॉर्मल एडल्ट HB 11 से 12 रहता है. हेमोग्लोबिन का क्या रोल रहता है कि वो एक ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. तो ये कार्टून फॉर्म में जो हमने देखा है कि ये एक रेड ब्लड सेल है, वो अपने बैग में लेके ऑक्सीजन लेके जा रहा है. कहाँ जा रहा है? तो वो सेल के पास. ये ऑक्सीजन सेल में जाएगा और इसको एनर्जी देगा, जिससे क्या होगा कि आपका ब्रेन बराबर फंक्शन करेगा, लंग बराबर फंक्शन करेगा, हार्ट बराबर फंक्शन करेगा, लिवर बराबर फंक्शन करेगा, आपके मसल की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा फंक्शन करेगी, आपके डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह ज्यादा फंक्शन करेंगे, जो ग्रोथ वगैरह की हेल्प है आपको, वो सारी चीजें भी आपको ज्यादा, मसल ये करेगा, बोन ये करेगा, फिर आपको आर्टेरियल फंक्शन में हेल्प करेगा. लेकिन अगर HB ही कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम रहेगी तो ये सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे. तो क्या सिम्टम होते हैं अनीमिया के? अगर हम एक एक ऑर्गन करके देखें तो अगर आपकी बॉडी में HB कम है, जितना एक नॉर्मल एज के हिसाब से रहना चाहिए, उस एज के हिसाब से अगर आपका HB नहीं है तो आपको हमेशा थकान रहेगी, आपको चक्कर आएंगे. अगर HB बहुत ज्यादा कम है तो कभी कभी आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं. आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, आपको हृदय के धबकारे जो बोलते हैं हम लोग, पाल्पिटेशन की अच्छा नहीं लगना, घबराहट से होना, वो सब होगा. चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक के फॉर्म में भी अनीमिया अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है. मेरे पास कभी कभी बच्चे 1 HB लेके भी आए हैं. आपका स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, जो आप बोलते हैं कि तिल्ली बढ़ गई है, वो होना. आंखें आपकी येलो हो सकती है, क्योंकि HB कम होना तो HB रेड ब्लड सेल जल्दी जल्दी मरने लगते हैं. आपकी स्किन एकदम पेल दिखना, जैसे कि सफेद दिखना, एकदम खून निकाल लिया हो वैसे. आपको हाथ पैर में ठंडापन रहना, जैसे कि अगर कोई और आपके हाथ पैर छुएगा तो वो बोलेगा कि नहीं आपके हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं. हाँ, मतलब सांस चढ़ जाना, अगर आप थोड़ा सा भी चलते हो तो सांस चल जाती है, सांस फूलने लगती है, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. मस्कुलर वीकनेस, किसी भी चीज को काम करने के लिए ताकत नहीं रहना, आपको बस ऐसा लगता है कि नहीं मैं बस सोती रहूं, मैं बस ऐसे पड़ी रहूं वैसे करके. स्टूल कलर चेंज हो जाना, मतलब आप जो टॉयलेट करते हो वो थोड़ा सा व्हाइट या थोड़ा सा येलोइश वैसे वैसे चेंज हो जाना. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर अनीमिया है आपको तो. ठीक है, जैसे कि हमने ये बोला, अगर आपका रेड ब्लड सेल कम है बॉडी में, मतलब जो हेमोग्लोबिन कम है, तो आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट आपका कलर हो जाएगा. थोड़े टाइम बाद अगर ये चीजें HB कम ही रहता गया तो इसको डार्किश पिगमेंटेशन बोलते हैं. आपकी स्किन नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी डार्क दिखनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि फटीग होना, थकान लगना, हार्ट रेट आपका ऊपर नीचे होना, छाती में दुखना, वीकनेस होना, सांस फूल जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं अनीमिया के, जो थैलेसीमिया बच्चों में अगर HB अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो भी ये हो सकते हैं. दूसरा पॉइंट जो था A से, वो है अडरेंस ऑफ ट्रीटमेंट. आपको भी पता है अगर हमने डेसीरॉक्स, कैल्फर या फिर डेस्पराल के पंप ठीक से नहीं लिए गए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रीजंस की वजह से हम ये चीजें नहीं ले पाते. तो सबसे पहला रीजन क्या है कि हमें ट्रीटमेंट प्लान समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको साथ में कर नहीं पा रहे. तो पहले क्या करना है, आपका ट्रीटमेंट रेजिमेंट सिंप्लीफाई करना है.
ये कैसे कर सकते हैं? आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मैडम या फिर सर, हमारी जो ट्रीटमेंट की गोलियां है वो एक साथ बहुत ज्यादा हो रही है, या मेरे वर्क शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं जिस टाइम पे आपने बोला है उस टाइम पे मैं लेते मुझे ये सब तकलीफें हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट को स्पेस आउट कर सकते हैं। जो सुबह की गोली कैसे लेनी है, दोपहर की गोली 3-4 घंटे बाद लेनी है। तो जब हम आप ये स्पेस आउट करेंगे, तब ये जाके आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप जब लेंगे तो आपको ये सब करने में इजी होगा, ये ट्रीटमेंट फॉलो करना। दूसरा, सबसे बहुत पुरानी ये मतलब रीजनिंग आउट है कि मैडम ये सारी दवाई जो आप बोल रहे हो वो बहुत महंगी पड़ रही है। तो कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको हम गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से या फिर एनजीओ से टाई अप करा देते हैं। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि आपको डायरेक्टली स्टॉकिस्ट के पास ले सकते हैं, ताकि वो मेडिकल और फार्मेसी का जो आपका डिफरेंस है वो कट जाए। तीसरी चीज हम ये करते हैं कि डे केयर में हम बल्क में ऑर्डर कर देते हैं और फिर वो मिनिमल कॉस्ट में पहुंच सकता है। लेकिन ये आप अपने डे केयर में अपनी जो भी डे केयर के इंचार्ज होंगे उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जो तीसरा रीजन है, जो 10 से 20 साल में बहुत ही कॉमन है, वो है मैं भूल गया दवाई लेना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जहां पे रोज हर एक वॉरियर बोलेगा मैंने मेरी दवाई ले ली। या फिर दूसरी एक चीज कर सकते हैं, आप अपने फोन में रिमाइंडर रख सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको हर एक दिन के हिसाब से वो आपको रिमाइंडर देगा कि आपको अभी ये गोली लेनी है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके लिए एप्स भी आते हैं जो आपको मेडिकेशन रिमाइंड करने के लिए ऐप मतलब ऐप में आपको सिर्फ देना है, वो रोज आपको रिमाइंड करेगा। ठीक है। अगर आपको दिक्कतें आ रही है मेडिकेशन फॉलो करने में, समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएंगे, आपको महीने के हिसाब से या 15 दिन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चेंजेस के ये करेंगे और आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए जल्दी बुला लेंगे, ताकि आपका दवाई का प्रोग्रेस कैसा है, आपका एचबी का प्रोग्रेस कैसा है, वो सारे हम दे सकते हैं। तीसरी चीज ये है थेरेपेटिक पेशेंट एजुकेशन। इसमें हम जो करते हैं, हम छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो या तो फिर आप ही एक फोटोग्राफ बना के एक चार्ट जैसा बना के फ्रिज पे रख दीजिए, जो जो दवाई आप ले रहे हैं उसको टिक मार्क कर दीजिए। अगर आप पेरेंट है जो ये वेबिनार देख रहे हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट के हिसाब से एक 30 डेज का चार्ट बना सकते हैं। उसमें आप अपने बच्चे को स्टार्स दे सकते हैं, अगर उन्होंने ठीक से फॉलो किया तो उनको बाहर ले जा सकते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहां से बच्चा हर बार खुद से ट्राई करेगा कि वो 30 के 30 दिन बच्चे टैबलेट ले और उसमें उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने की आशा में ये ट्रीटमेंट वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये तो हमने देख लिया कि एक तो हम आपको बोल सकते हैं एकदम मेडिकल लैंग्वेज में कि आपका डिजीज कैसे बढ़ रहा है और हमें क्या क्या करना चाहिए। ये हम जो एडल्ट होते हैं उनके साथ ये कर सकते हैं। जो हम करते हैं कि एडल्ट से हम लोग एकदम मैच्योरली बात कर लेते हैं, ताकि उनको उस दवाई मेडिकेशन का इन्फेक्ट समझे। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं या आपको डर लग रहा है कि ये साइड इफेक्ट मुझे होंगे, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे पीछे दवाई को टेलर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये, आपको अगर हमने डेस्पराल पंप बोला है तो हम 1-2 बार हमारे सामने ही आपको लगवाएंगे, ताकि आपको समझ में आए और आप उससे कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट का जो एज होता है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप ये मेडिकेशन पे एडल्ट सुपरविजन के साथ हम ये करते हैं। फॉरगेटफुलनेस का तो हमने आपको बता दिया। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है दवाइयों को लेके, बहुत ज्यादा डर है दवाइयों को लेके। अगर आपके मन में कुछ है तो प्लीज बेझिझक होकर डॉक्टर से बात कीजिए। शायद आपका डर से बहुत ही बेबुनियाद हो, जिसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। सोशल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कभी कभी बच्चा अपना ही सपोर्ट ये करता है, तो उसमें बहुत सारी एनजीओज है जो आपको डेस्पराल के लिए मदद कर सकती है, चेलेशंस के लिए मदद कर सकती है, बहुत सारा सोशल वर्कर्स है जो ये सारा काम करते हैं। अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको उन सब सोशल वर्कर्स को नंबर या जैसे भी हो सके हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए, वो कोई गलत मेडिकेशन नहीं देगा आपको। दूसरी चीज ये, अपने डॉक्टर से जितना हो सके उतना कम्युनिकेट कीजिए।
अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन अडरेंस मतलब एक दवाई को बिना, मतलब कभी कभी होता है कि घर में शादी है, घर में कुछ अजीब सा हो गया है जिसकी वजह से आप दवाई नहीं ले पाए, तो ये सारे रीजंस नहीं चलेगी, क्योंकि एक दिन का डेसिरोक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महीने का डेसिरोक्स इंपॉर्टेंट रहता है। अभी बी से है दो बड़ी चीजें, वन इज बीटा थैलेसीमिया, जो जिसके बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, और दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसपे अपनी जिंदगी निर्भर है। सो आप सबको पता है हेमो रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो चार चीजों दो चेन से बनता है, दो चेन जो डबल होके चार होती है, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। अगर अल्फा चेन डेफिशिएंट है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। ये बीटा थैलेसीमिया जो आप सबको है, जो बीटा चेन डेफिशिएंसी से होता है, ये जीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर सब कुछ को कंटिन्यू किया जाए तो 50 से भी ज्यादा प्रकार के थैलेसीमिया है, जैसे कि HbE थैलेसीमिया, HB अल्फा अल्फा थैलेसीमिया, HbH डिजीज, HbE प्लस बीटा थैलेसीमिया, सिकल बीटा थैलेसीमिया, ये करके बहुत सारे हैं। एक अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होता है, एक बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, जो सिर्फ कैरियर होता है, जिनमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करके थैलेसीमिया को ट्रांसफ्यूजन के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि होता है इंटरमीडिएट ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, एक तो होता है नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, और एक होता है ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया। नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया में ये सारे प्रकार आते हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका HB लेवल कम रहता है। इंटरमीडिएट जहाँ पे कभी कभी अगर उनका ग्रोथ या डेवलपमेंट ठीक ना हो, उस हिसाब से उनको कभी कभी सर्जरी से पहले या ऐसे करके ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और जिनको रेगुलर लाइफ लॉन्ग के लिए, जिनको ट्रांसफ्यूजन ही सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर, या फिर सीवियर हीमोग्लोबिन E विद बीटा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, जो ये बार्ट्स हाइड्रोक्पिटालिस होता है उसमें बच्चा बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता, तो हम इस कैटेगरी में आते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, सिर्फ एक ही थैलेसीमिया है ऐसा नहीं है, 50 से भी ज्यादा प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, लेकिन आपके लिए ऑब्वियसली बीटा थैलेसीमिया मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रांसफ्यूजन के गोल्स क्या रहेंगे? तो हम अगर ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे ट्रांसफ्यूजन के गोल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जितना भी ऑक्सीजन बॉडी का है वो अच्छी तरह से जहां जहां जिस सेल को जरूरत है वहां पे पहुंचे। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रांसफ्यूजन के बाद हमें एक एप्रोप्रिएट हेमोग्लोबिन लेवल चाहिए, जैसे कि प्री ट्रांसफ्यूजन अगर 9 से 10.5 आपका हेमोग्लोबिन रहना चाहिए, तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन वो 14 से 15 जाना चाहिए। नॉर्मली हम कॉस्ट ये करने के लिए पोस्ट ट्रांसफ्यूजन चेक नहीं करते, प्री ट्रांसफ्यूजन चेक करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हम आपको ब्लड देंगे। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन जब आपका हो तो आपको मिनिमल से मिनिमल, पहले तो रिएक्शन हो ही ना, आपको रिएक्शन देना ही नहीं है, और जो भी HCV, HBV, HIV वो सारी जो चीजें सब ब्लड से फैलती है ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, वो फैलनी नहीं चाहिए। दिस आर आर गोल्स ऑफ आइडियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अभी हम किसको ट्रांसफ्यूज करते हैं? हर एक बच्चे को तो हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते, तो सबसे पहले हमारे पास एक कंफर्म डायग्नोसिस होना चाहिए कि इस बच्ची को थैलेसीमिया मेजर है, जिसके लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिपोर्ट, आपका CBC का रिपोर्ट, आपके माँ बाप की HBPLC का रिपोर्ट, CBC का रिपोर्ट, सब कुछ मांगते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है जिनको पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रहा है, तो उसका HB 7 से कम 2 बार होना चाहिए 14 दिन के अंतर में, तभी हम ये ब्लड उसको चढ़ा सकते हैं, वरना हम वेट करेंगे, क्योंकि हमने सीखा ना कि 50 और तरह के HB होते हैं। कभी कभी वो HB थैलेसीमिया वैसे होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, वो थैलेसीमिया मेजर में भी नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट वो जीन के हिसाब से होता है। इसीलिए ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू करने से पहले। या फिर उसका HB 7 से ज्यादा है लेकिन उसको फेशियल चेंजेस आने लगे, उसका ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है, उसको बार बार फ्रैक्चर्स हो रहा है, या तो उसकी हड्डियां फूलने लगे, जैसे उसको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, तो इस
ये क्राइटेरिया में अगर वो बच्चा फिट होता है तो ही हम उसको ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ठीक है, अभी ब्लड प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो ब्लड प्रोडक्ट फ्रेश होना चाहिए जिसमें ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड होने चाहिए। ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं, जो बच्चों में कभी कभी आपने देखा है कि हमने जस्ट ब्लड चालू किया है, अचानक उसकी स्किन एकदम लाल हो गई, उसको फीवर आना, उसको खुजली होना, तो वो सारे होते हैं फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। वो किससे आते हैं, वो ल्यूकोसाइड से आते हैं। इसीलिए हम ल्यूको रिड्यूस देना चाहते हैं ताकि आपको ये सारे रिएक्शंस ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बच्चे का ब्लड क्रॉस मैच ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा 2-3 बार ब्लड अलग अलग बैग डाल रहे हैं फिर भी क्रॉस मैच नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं हम एलो इम्यूनाइजेशन, क्योंकि उसकी बॉडी ब्लड ले लेके खुद ही के आरबीसीज मार रही है और वो मैच नहीं हो पा रही है। ठीक है, तीसरा होता है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, कभी कभी मलेरिया और ये सारी चीजें। अगर आपने ब्लड बैग देखी होगी तो उसमें ये सब लिखा होगा कि HBV चेक, HCV चेक, BDRL चेक, HIV चेक। ये नहीं है ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमें नहीं होने दे रही, इसीलिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या गाइडलाइंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की? पहले तो कंफर्म कीजिए कि आपकी बीमारी थैलेसीमिया मेजर है। दूसरी चीज, हर एक बार एवरी टाइम बिफोर ट्रांसफ्यूजन आपका बैग क्रॉस मैच होना चाहिए। जैसे कि एक तो ब्लड ग्रुप्स को भी अलग अलग मेथड से क्रॉस मैच किया, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो है ABO RH मेथड, और 31 टाइप्स के मेथड आते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आपका ब्लड एलो इम्यूनाइज हो रहा है तो आपको C, E और कैल एंटीजन के लिए भी करना पड़ेगा। आपको हर एक ट्रांसफ्यूजन का रिकॉर्ड रखना है। हर एक ट्रांसफ्यूजन से पहले आपका कितना HB था, आपने कब ब्लड दिया, वो ब्लड कब कलेक्ट हुआ था, कितना ब्लड आपको दे रहे हैं, और अगर आपको कोई रिएक्शन हुआ है कि नहीं, वो ऐसी एक बुक बना के हर एक ट्रांसफ्यूजन का आपको रिकॉर्ड करना है। इससे आपको HB का पैटर्न पता चलेगा, आपको रिएक्शन का पैटर्न पता चलेगा। मोस्टली डे केयर में, हर एक डे केयर में ये रिकॉर्ड बुक देते हैं। अगर आपकी डे केयर में रिकॉर्ड बुक नहीं है तो मुझे प्लीज ईमेल कीजिए या मैसेज कीजिए, मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको भेज सकती हूँ, आप सबके लिए प्रिंट हो सकता है वैसे करके। मेक श्योर आपको फिल्टर मिले। ठीक है, हम यूजुअली प्री स्टोरेज फिल्टरेशन का यूज करते हैं, जैसे कि ब्लड जैसे आता है वैसे ही उसको फिल्टर कर दिया जाए, या फिर ब्लड बैंक में ब्लड को अलग करने से पहले प्री स्टोरेज करते हैं, या तो फिर किसी किसी जगह पे बेड साइड जो IV सेट की जगह पे फिल्टर लगा देते हैं। ये 3 तरह से फिल्टर्स यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, प्री स्टोरेज फिल्टरेशन जो ब्लड बैंक खुद ही कर ले, दैट इज द बेस्ट मेथड। फ्रेश ब्लड यूज करना चाहिए। ठीक है, एज फ्रेश एज 1 वीक पहले, मतलब अगर आज 9 तारीख है तो वो ब्लड 2 तारीख का कलेक्ट होना चाहिए, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, इसीलिए वो 1 वीक से 2 वीक तक आप कर सकते हैं। प्रिफरेबली 1 वीक के अंदर अंदर का ब्लड आपको लेना चाहिए। प्री ट्रांसफ्यूजन HB आपका 9 से 10 के बीच में लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका HB 11 से 12 है और आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो आपको अपने डे केयर इंचार्ज से बात करनी है कि आपको अगर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया जा रहा है तो कितना HB रखना है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन HB 14 से 15 तक ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा ब्लड देना भी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन HB नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। प्री ट्रांसफ्यूजन HB का हमारा एम रहता है 9 से 10 के बीच में रखना। ये है गाइडलाइंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। इसमें आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर मैं आपको भेज दूंगी ये स्लाइड्स। सी, ये जो सबका पसंदीदा टॉपिक है, चिलेशन। केलेशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन बनता है उसको तोड़ने के लिए हम कुछ मेडिकेशन लेते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, जो वो आयरन के साथ कंबाइन होता है और वो यूरिन या फिर स्टूल के हिसाब से निकल जाता है। अभी आप समझिए, मेरी बॉडी में भी आयरन है, आपकी बॉडी में भी आयरन है, ठीक है, लेकिन अगर ये टोटल बाउंड आयरन जो होता है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगा तो वो मेटाबॉलिक यूज में वो निकल जाएगा। लेकिन जब ये नॉन ट्रांसफरिंग बाउंड आयन जब होता है, वो अनकंट्रोल जब हो जाता है तो बॉडी में आयन घूमने लगता है। ये जो आयन है अगर वो मेटाबॉलिक यूज में मतलब बॉडी के यूज में चला जाए तो ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये सब इकट्ठा होके बनाता है फेरिटीन। ठीक है, फेरिटीन जो है वो अलग अलग जगह जाके बैठ जाता है।
जैसे कि हार्ट में, पिट्यूटरी में, लिवर में और पैंक्रियाज में, ये सारी जगह पे बैठता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, वो यहाँ पे जाके वो फैट के साथ मिल जाता है और फिर वो ऑर्गन को डैमेज करने लगता है और धीरे धीरे उस बॉडी के सारे सेल्स को मारने लगता है। इसकी वजह से लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता, पिट्यूटरी जो सारे हार्मोन्स बनाती है जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव के हार्मोन्स, ग्रोथ के हार्मोन्स, इसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ पाती, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर ये TGF-B1 अल्फा के साथ मिल गया तो वो फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस मतलब वो सिकुड़ना, तो वो लंग के, हार्ट के सेल्स को वो सिकुड़ने लगता है। इसकी वजह से आयरन डिपोजिशन की वजह से उनके फंक्शंस डिस्पेयर हो जाते हैं। ये हमें रोकना है। तो हम कैसे रोक रहे हैं उनको? देखो यहाँ पे पिट्यूटरी, पैराथाइड, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास और आपके सेक्सुअली ऑर्गन्स में जाके ये सारे फेरिटिन जाके बैठ जाता है। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने होती है। अभी गोल क्या है आयन चेलेशन का कि हमें 0.4 to 0.5 मतलब ऑलमोस्ट आधा ग्राम केजी के हिसाब से, मतलब अगर आप 30 केजी के हो तो दिन में 15 मिलीग्राम आपको निकालना है, ठीक है। और जो स्लो प्रोसेस है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन चलेशन नहीं लिया तो ये आयरन ओवरलोड तो बढ़ता ही है, ये फेरिटिन बढ़ता ही जाएगा और ये डैमेज होता ही रहेगा जो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। अभी हम कैसे कर रहे हैं आयरन चलेशन? तो हम पहले यहां से चालू करते हैं, ठीक है। ये है अपना सबका फेवरेट डेसिरॉक्स। ये ओरल फॉर्म में आता है, इसका डोज है 20 to 40 mg पर केजी पर डे। लेकिन आपके डे केयर के जो डॉक्टर है वही सही डोज बता सकते हैं, क्योंकि आपके किस डोज पे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आ रही है, किस डोज को आपको बढ़ा सकते हैं, वो यही जानते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? एक तो होता है GI डिस्टर्बेंसेस, कभी कभी जब स्टार्ट करते हैं तब किसी किसी को ये अगर रैश नहीं आता तो वो मतलब ऐसे एलर्जिक रैश वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। ये कभी कभी लिवर एंजाइम्स जो हम LFT करते हैं इसमें SGOT SGPT बढ़ता है, लेकिन जब तक ये SGOT SGPT आपके लैब वैल्यू से 3 गुना नहीं बढ़ता तब तक ये मेडिकेशन हम बंद नहीं करते। इसको हम दिन में एक ही बार लेते हैं, सुबह उठने के बाद तुरंत बाद 100 ml पानी में 3 मिनट के अंदर इसको लेना है, क्योंकि ये हवा से भी रिएक्ट करता है। इसको नॉन मेटालिक कंटेनर में लेना है क्योंकि वो मेटल से भी कंटेनर करता है। इसको आप कुल्हड़, कांच का ग्लास किसी में भी ले सकते हैं। इसको घोलने के लिए जो चम्मच यूज करते हैं वो भी कांच का या प्लास्टिक का ही यूज कीजिए, किसी भी धातु के कांटेक्ट में इसको आने मत दीजिए, ठीक है। दूसरा है कैल्फर। कैल्फर हम मोस्टली तब चालू करते हैं जब उनको कार्डियक आयरन ओवरलोड बढ़ जाता है, ठीक है। इसको दिन में 3 बार लेना होता है, ठीक है, सुबह दोपहर शाम। डेसिरॉक्स के 4 घंटे बाद कैल्फर लिया जाता है नॉर्मली। एक कैल्फर के डोज में और दूसरे कैल्फर के डोज में आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे का गैप रखना है, ठीक है। इसको 75 to 100 mg पर केजी एज पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना है। इसमें क्या होता है, ये कभी कभी आपकी सेल काउंट कम कर देता है, इसीलिए आपको कैल्फर में हर महीने CBC करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये नी जॉइंट पेन करता है, मतलब अगर आपको ये नी जॉइंट पेन हो रहा है तो प्लीज अपने डे केयर इंचार्ज से बात कीजिए, आपको शायद दवाई बदलनी पड़े। और तीसरा होता है डेस्पराल। डेस्पराल हम IV देते हैं और सब्क्यूट देते हैं, ये आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से लेना है, ठीक है। ये 3 फॉर्म है जो अब हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। सबका पसंदीदा क्वेश्चन, क्या खा सकते हैं मैडम और क्या नहीं खा सकते? तो खाने में हमें सबसे पहले जितनी भी चीजें जो लो आयरन डाइट है वो लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें हर एक खाने के बाद चाय या कॉफी आप पी सकते हैं, बिना दूध वाली पिए तो ज्यादा बेटर है। पुराने जमाने में लोहे के पात्र में खाना बनाया जाता था, मोस्टली अभी नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में अभी भी लोहे के पात्र में या तवा पे खाना बनाया जाए प्लीज यूज कीजिए। सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खानी है, रागी, नाचनी, बाजरी ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। जितना भी आप दूध, दही, पनीर, छाछ खा सकते हैं ये सारा खाना है, ठीक है। इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, विटामिन D मिलेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम ऑलरेडी देते हैं, विटामिन D हम साल में एक बार सप्लीमेंट या 6 सैशे हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको चालू है। आपका पूरा कंप्लीटली बैलेंस डाइट होना चाहिए
और जिंक अगर आप टेल्फर ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा जिंक लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको क्या चीजें खानी है, जैसे कि हमने बताया मिल्क, पनीर, बटर मिल्क, कर्ड, ये सारी चीजें आपको खानी है। दूध, दही, छाछ और पनीर ये खाना है। हफ्ते में 3 बार अंडे व्हाइट पार्ट वाले खाने हैं। सी फूड आप खा सकते हो। फलों में आप केला, चीकू, एप्पल खा सकते हो। दिन में 1 बार सफेद तिल खाना है आपको। कभी भी दिन में कैसे भी खाइए, सफेद तिल खाइए। जो भी लेग्यूम्स होते हैं जैसे कि उबला हुआ चना, उबला हुआ मूंग, ये सारी चीजें आपको खानी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। टी या कॉफी प्रेफरेबली बिना दूध के, प्रेफरेबली हर खाने के 10 मिनट बाद आपको लेना है। जैसे कि लंच किया तो 1 कप काली चाय पीनी है, काली कॉफी पीनी है, ये सारा चीजें। जैसे कि दोपहर का दोपहर के बाद या फिर शाम, दिन में 3 बार अगर आपकी एज ज्यादा है तो लेनी है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड और कैशू खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते? गुड़ आप बिल्कुल नहीं खा सकते। गुड़ हमारे लिए जहर समान। चिकन में आप पूरा चिकन खा सकते हैं, कलेजी वाला पार्ट नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते। दारिम नहीं खाना है, ऑरेंज या लेमन कम खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाना है। जो ड्रमस्टिक्स होते हैं जिसको हम शेवगा बोलते हैं, जो हम दाल या सब्जी के हिसाब से खाते हैं, वो नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स तो हर एक इंसान के लिए अवॉइड करना बेटर रहेगा। खजूर आप नहीं खा सकते ड्राई फ्रूट्स में। इस स्लाइड का फोटो भी ले सकते हैं या फिर मैं आपको एक स्लाइड आपको भेज दूंगी। ठीक है, अभी ई फॉर एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज पहले तो एक फिजिकल फॉर्म है जो आपकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाएगी, जिससे आपके माइंड को भी फ्रेश लगना स्टार्ट होएगा। आपकी नींद अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपको एक फॉर्म का एनर्जी मिलेगा, हेल्दी वेट रहेगा आपका, तो आप अच्छा दिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको अंदर से एकदम अच्छा अच्छा लगेगा। जैसे कि ये सारे फायदे हैं एक्सरसाइजेस के। क्या एक्सरसाइज एक थैलेसेमिक कर सकता है? आप अपने फोन में या फिर रिस्ट वॉच में एक काउंटडाउन लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क वॉच फॉर हाफ एन आवर। 10,000 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं दिन में। जैसे फोन पे बातें करना या कभी कभी म्यूजिक सुनते सुनते आप कर सकते हैं। स्विमिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। आप एक साइकिल चला सकते हैं आधे घंटे के लिए, घर का काम या गार्डन का काम कर सकते हैं, या तो फिर बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट जैसे भी गेम्स आप खेल सकते हो। बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आप स्किपिंग, जो हम रस्सी से कूदते हैं, वो रनिंग आधे घंटे के लिए, योगा कर सकते हैं आप। लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए आप वॉक कर सकते हैं स्लोली, घर के काम कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। मॉडरेट में आप आधा घंटा रूम बंद करके आप बिल्कुल गणपति विसर्जन डांस कर सकते हैं, या फिर आप टेनिस या फिर बैडमिंटन जैसी गेम्स आप खेल सकते हैं। अगर आपको जिमिंग करना है या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो सबसे पहले अपना आपका डेक्सा इंप्रूव कीजिए, डेक्सा रिपोर्ट लेके जाइए। एक अच्छे से जिम में जाइए जहां पे आपको पर्सनल ट्रेनर असाइन किया गया हो। उस पर्सनल ट्रेनर को आपकी सारी मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में पता हो, ताकि वो उतनी ही एक्सरसाइजेस करवाए आपसे जो आप बेयर कर पाओ। एफ फॉर फेरिटिन। देखिए, फेरिटिन ना मेरी बॉडी में भी है, आपकी बॉडी में भी है। हमें 10 to 20 mg फेरिटिन बॉडी से, मतलब ये आयन एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल बॉडी लेवल। ठीक है, हम ये 1 to 2 mg आयन पर डे लूज करते हैं बॉडी से। ठीक है, ये पूरी जो बॉडी है, वो जो फेरिटिन जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, वो फेरिटिन लिवर और हार्ट में जाके बैठ जाता है। ठीक है, अभी थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जो हम आयन लेते हैं वो तो 20 to 20 mg ही रहता है, लेकिन ये एब्जॉर्ब होता है 10 mg का 10 mg, मतलब ये बाहर नहीं जाता। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ आता है और लिवर और हार्ट में जाके बैठ जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल एक बॉडी में 1000 mg/ml का होना चाहिए। ठीक है, फेरिटिन डे केयर पॉलिसी के हिसाब से 3 महीने में करते हैं या 6 महीने में करते हैं टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है ये बेसिकली लिवर में जाके नहीं करते, और ये सस्ता होता है बाकी टेस्ट के हिसाब से। लेकिन सीरम फेरिटिन इज नॉट द बेस्ट टेस्ट आयन ओवरलोड ये करने के लिए। इसके लिए हमें
T2 स्टार MRI वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा F का पार्ट है फिल्टर्स के बारे में। ये है लुकोसाइट फिल्टर। लुकोसाइट फिल्टर जैसे हमने ये बोला, ये छन्नी जैसा होता है। इसमें जो लुकोसाइट्स होते हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, जो सारे रिएक्शन करते हैं वो छन्नी होते हैं, और यहाँ से जो आपको आएगा वो जो ब्लड का फॉर्म होगा उसमें लुकोसाइट रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, जैसे कि ये किस किस को करना देते हैं, जैसे कि जिसका ब्लड क्रॉस मैच नहीं हो पा रहा है, या जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है जिनको CMV इन्फेक्शन ना हो, या जिनको बार बार रिएक्शंस हो रहे हैं उनको। लेकिन थैलेसीमिया में ट्रांसफ्यूजन इतना ज्यादा देते हैं, इसीलिए हम हर एक ब्लड को लूको डिप्लीटेड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया, एक तो हम लोग प्री स्टोरेज लुकोसाइट फिल्टर कर सकते हैं, या तो हम लोग लेबोरेटरी में कर सकते हैं, या तो हम जब ब्लड देते हैं तब ये करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया में बेड साइड ही लुको फिल्टर यूज करके किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ब्लड बैंक जैसे कि AFMC पुणे लेबोरेटरी में ही स्टोरेज के टाइम पे कर लेती है, विच इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, एक लुकोसाइड फिल्टर की कीमत 3000 रुपए होती है, लेकिन अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदो तो वो 750 से 800 रुपए में आ सकती है। कल ही ओडिशा गवर्नमेंट जो पटनायक सर है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हर एक थैलेसीमिक ओडिशा में फ्री फिल्टर्स देंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट को 2 करोड़ का खर्चा ऑलमोस्ट ईयरली आएगा। लेकिन आई होप कि बाकी की भी गवर्नमेंट्स इससे एक लेसन ले और बाकी की भी गवर्नमेंट्स फिल्टर्स फ्री कर दे अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे NGOs हैं जो फिल्टर्स देते हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। G फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, मेरे बच्चे का मानसिक जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका HB नॉर्म मेंटेन करना बहुत जरूरी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रॉपर चेलेशन लीजिए, फेरिटिन 1000 के अंदर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपका चैलेटर से टॉक्सिसिटी हो रहा है तो डॉक्टर से बात कीजिए, जो आपके नए अपग्रेड कर सकते हैं चैलेटर्स में, जिसमें आपका फेरिटिन 1000 के नीचे रहने की कोशिश की जाए। अगर आपका प्रोटीन इंटेक, कैलोरी इंटेक ठीक से नहीं है, आपका विटामिन डी ठीक से नहीं है, आपका जिंक वगैरह जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो ठीक से नहीं है, तो आपको ओरल जिंक सप्लीमेंट चालू करना चाहिए। अगर आपका स्प्लीन, तिल्ली बहुत ही बढ़ गया है तो डॉक्टर से प्लीज बात कीजिए, अपना लेवल HB 9 तक रखने की कोशिश कीजिए जिससे स्प्लीन भी कम होने की हो। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो एक एज के बाद आपको ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट किया जाएगा और इसके इंजेक्शंस दिए जाएंगे। ये जो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं वो महात्मा फुले योजना और राजीव गांधी योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपको हॉस्पिटल स्टे, एक डे केयर का स्टे लगेगा जिसमें आधा घंटे का एक इंजेक्शन रहता है, दैट्स इट। अगर आपका मतलब पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे, आपके मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे, तो प्लीज वो डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि मेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया है तो वो सारी चीजें इग्नोर करनी है, वो चीजें भी साथ साथ में हमें ठीक करनी है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि डायबिटीज जो है बहुत कॉमन रहता है बच्चों में, डायबिटीज, गॉल स्टोन्स, ग्रोथ हार्मोन की सारी प्रॉब्लम्स, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस टाइम पे होना, उनका जल्दी इलाज होना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी? पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक से लेना है ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लिवर और एंडोक्राइन प्लेट तक जाए और नॉर्मल सिंथेसिस करे सारी चीजों का, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाए। हमें फेरिटिन को अच्छे से 1000 के नीचे रखना है, चेलेशन थेरेपी ठीक से रखना है ताकि लिवर का सड़ना कम हो, हार्ट में फेरिटिन ना पहुंचे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पैंक्रियाज में और ग्रोथ प्लेट पे ना पहुंचे। जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है जैसे कि कैलोरीज, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, जिंक, वो सारा हमें इंप्रूव करना है ताकि हमारी लिवर और बाकी ग्रोथ हार्मोन की चीजें बढ़े। ग्रोथ हार्मोन अगर कम है टेस्ट के बाद तो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लेना है ताकि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़े, मसल बढ़े, फैट बढ़े। ठीक है, अगर आपका पीरियड ठीक से नहीं है, आपकी ग्रोथ हार्मोन मतलब जैसे कि टेस्टिस छोटी है, आपको लगता है कि आपके जो सेक्स ऑर्गन के गोनाड्स है वो छोटे हैं, तो हमें हार्मोनल थेरेपी लेनी है, वो सारी चीजों को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें जब साथ में मिलेगी तो आपकी हाइट भी ठीक से बढ़ेगी, आपका डेवलपमेंट भी ठीक से होगा। H फॉर HLA।
अभी ये HLA जो होता है वो ट्रांसप्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। HLA मैचिंग जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो आपका सलाइवा का टेस्ट, मतलब जैसे कि कान में वो ईयरबड्स डालते हैं वैसे ही एक स्वैब आपके गाल से नीचे लिया जाएगा और फिर वो सैंपल यहाँ से चेन्नई जाता है, चेन्नई से वो USA जाता है, जहां पे आपका HLA मैच होता है। जैसे आपका ब्लड मैच होता है वैसे आपका HLA मैच होता है, ठीक है। ये HLA अपने भाई बहन के साथ मैच होने के चांसेस 25% और अपने माँ बाप के साथ मैच होने के चांसेस 3%, ठीक है। इसीलिए हम दूर के रिश्तेदार, कजिन बुआ, कजिन, उन सबसे मैच नहीं करते। एक सैंपल का टेस्ट का खर्चा, मतलब अगर मैंने आपका HLA लिया तो उसका खर्चा 10,000 रुपए आता है, ठीक है। मतलब क्योंकि हमें मैच करना है, मतलब हमें 2 सैंपल लेने पड़ेंगे तो उसका खर्चा 20,000 तक जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी है चीजें, NGOs है, थिंक फाउंडेशन है, विनय शेट्टी सर है, जो संकल्प ग्रुप है, वो HLA कैंप लेते हैं हर साल, जहां पे बच्चों का मुफ्त में HLA हो जाता है। अगर वो बढ़ जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो फिर उनका ट्रांसप्लांट के लिए आगे कार्रवाई होती है, ठीक है। ये कैसे होता है HLA मैच? जैसे कि मैंने बोला ब्लड और चिक सैंपल से लेते हैं, जैसे जैसे प्रेफरेबल होगा वैसे। HLA मतलब क्या होता है? आपका क्रोमोसोम टाइप, ठीक है। इस तरह से एक हाई रेजोल्यूशन HLA होता है जहां पे 12 बाय 12 मैच किया जाता है और एक लो रेजोल्यूशन होता है जिसको 6 बाय 6 मार्क्स में मैच किया जाता है। 12 बाय 12 ट्रांसप्लांट के लिए प्रेफरेबल है। अगर आप किसी कैंप का हिस्सेदार बन रहे हो तो आप उनसे प्लीज पूछिए कि ये हाई रेजोल्यूशन है या लो रेजोल्यूशन। अगर हाई रेजोल्यूशन है तो ही सैंपल आगे बढ़ाइए, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकता है? जहां जहां ट्रांसप्लांट सेंटर, डे केयर सेंटर है, वहां वहां आप कर सकते हैं। किसी को अगर HLA कैंप करवाना है तो गिफ्ट टू थैलेसीमिया जो मदन चावला सर का है, वो भी अभी ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आगे की कार्रवाई आपको बता देंगे। आई फॉर आयरन ओवरलोड, ये हमने सबने देखा है कि देखिए, अगर आपको ब्लड चढ़ रहा है या आपको ब्लड नहीं चढ़ रहा है फिर भी आपको आयरन ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि थैलेसीमिया में जीन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन एब्जॉर्ब ज्यादा होता है बॉडी में। जो इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब मेरी बॉडी में जो 2 mg पर kg डे के हिसाब से होगा, वो थैलेसीमिया की बॉडी में 5 गुना ज्यादा होगा। इसके लिए फर्क नहीं पड़ता अगर आप ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो या ट्रांसफ्यूजन नॉन डिपेंडेंट हो, आपका आयरन ओवरलोड रह सकता है। तो क्या क्या होता है आयरन ओवरलोड की वजह से? एक तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, और दूसरी चीज है हम हर एक ब्लड बैग से 200 या 250 mg आयरन बॉडी में जाता है हर एक ट्रांसमिशन पे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सवैया है, जो थायराइड, पैराथायराइड, ये सारे हार्मोनल जो हार्मोन पैदा करते हैं वो डिस्फंक्शन हो जाते हैं। कार्डियक आयरन ओवरलोड होता है, लिवर आयरन ओवरलोड होता है, डायबिटीज हो सकता है, आपके जो सेक्स ऑर्गन के गोनाड है वो मतलब कम डेवलप्ड हो गए, वो सारी चीजें। कभी कभी ये बोन डिजीज भी करता है क्योंकि बोन वीकन हो जाती है। लेग अल्सर कर सकता है, ठीक है। आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन कर सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाए तो बहुत जानलेवा तकलीफें दे सकता है, ठीक है। अभी हमें ये आयरन ओवरलोड कैसे रोकना है? अगर आपके पास T2 स्टार अवेलेबल नहीं है तो पहले नजदीकी जहां पे भी अवेलेबल है वो देखिए। फिर भी अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप एक 2D को या वैसे सोनोग्राफी करके, और अगर आपका फेरिटिन लेवल के हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2D इको में भी प्रॉब्लम आ रहा है और आपका फेरिटिन 2500 से ऊपर है तो आपको 2 तरह के टैबलेट लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सारा प्लान आप अपने डे केयर इंचार्ज की मदद से ही आगे बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमें आगे ये करना है वो, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा विस्तृत में डिस्कस कर लिया हमने। So Anshul, that was it for today. We have 40 participants currently online. Yes, ma'am. Yeah. So ये था A to I
आगे का हम नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपना हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड आप मैम से पूछ सकते हैं। जुलेखा, ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। Hello, ma'am. हेलो। It is prescribed to take tea or coffee like after every meal. लेकिन मैम उससे एसिडिटी हो जाती है विदिन 15 डेज में हाइपर एसिडिटी होने लगती है बच्चे को. सो व्हाट टू डू फॉर दैट? आपका बच्चा कितने साल का है मैडम? शी इज 10 year old और मैं ये स्पेशल 3 साल पहले फॉलो करती थी, बट मैंने देखा कि उसको सडन ऐसे रिलैप्सेस होने लगते हैं. मतलब 15 दिन भी चाय दो तो देन हाइपर एसिडिटी पे चली जाती है वो. हाँ, किसी किसी को जरूरी नहीं है कि हर किसी को चाय रास आए। अगर आप दूध के साथ चाय देते थे या बिना दूध के देते थे? हेलो मैम दूध के साथ भी ट्राई किया है, बिना दूध के भी ट्राई किया है. ठीक है, दोनों तो के आप साथ एक ही काम ट्राई किया. कीजिए, अगर चाय कॉफी से उनको एसिडिटी हो रही है तो आप वो कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी मेडिकेशन और चाय के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप उनको यही कर सकते हैं कि दिन में 1 चम्मच जो सफेद कलर के तिल आते हैं हाँ हाँ. वो उनको दे दीजिए। वो उतना ही काम करेगा जितना एक चाय कॉफी का काम करेगा, आयरन एब्सॉर्ब करेगा। ओके, थैंक यू. ओके, वेलकम। Yeah. ओके, रविंदर सर। हेलो, रविंद्र सर, आप सवाल नहीं पूछ सकते मेरे से। सॉरी। आपको सवाल पूछना अलाउड नहीं है सर। ओ अरे जब थैलेसीमिया के करता भरता है वही सवाल पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी? फिर तो हम फोन पे रोजाना ही तंग करते रहेंगे। नहीं नहीं, पूछिए सर, पूछिए सर। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी लोग अभी ऑनलाइन है, रविंद्र दुधेजा सर फरीदाबाद से है। वो पिछले 35-40 साल से थैलेसीमिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका खुद का डे केयर सेंटर है, अभी उन्होंने नया डे केयर सेंटर चालू किया है। उन्होंने कपिल देव सर से या फिर वो जो सिंगर है, मुझे उनका नाम नहीं पता अभी, मतलब इतने सेलिब्रिटी से ब्लड डोनेट करवाया है थैलेसीमिया के लिए और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये जितना बोल रही हूँ ना इतनी स्लाइड्स दिखा के, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो खुद कर रहे हैं ये सारा काम। ही इज द फादर ऑफ थैलेसीमिया, ऐसा बोल सकते हैं। जो एसबीटीसी कार्ड की जो नॉर्म्स है, जो फिजिकल हैंडीकैप के जितने भी रूल्स है, वो थैलेसीमिया में इंक्लूड करने के लिए इनकी मुहिम थी, जिसकी वजह से PWD 2016 में थैलेसीमिया इंक्लूड हुआ था। सो वो मुझे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मेरा तो। जी सर। जैसे कि हम बच्चों को ब्लड फ्री ट्रांसफ्यूजन देते हैं, हमारा सेंटर आपने फोटोग्राफ में देखा होगा। यस यस कि यस शायद वर्ल्ड लेवल का एक बहुत अच्छा यस सेंटर। यस यस। वो दूसरा सेंटर भी अभी हमारा 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। इनॉग्रेशन हमारा हो चुका है उसका। हाँ, एक करेक्ट। स्टार्ट कर देंगे हम। और अब प्रॉब्लम हमारे को ये आती है, बच्चे ब्लड चढ़वाने तो आ जाते हैं, जब जी सर। मेडिसिन की बारी आती है, मेडिसिन हम इन बच्चों को फ्री देते हैं, चाहे जी वो सर। सरकार से दें या हम खुद खरीद के हाँ, दें। करेक्ट। तो ये बच्चे दवा तक नहीं लेते, इनको क्या करें? हाँ सर, बच्चों का तो ये पहले ये है ना कि उन कुछ एज तक हम समझा नहीं सकते। अगर एडल्ट है तो उनको समझा सकते हैं। इसके एडल्ट ही लिए है ना, मैम। हाँ हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना सर, हम इनकी रिकॉर्ड बुक के पीछे ना ऐसे कॉलम बना देते हैं, जहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि जिस दिन आपने मेडिकेशन लिया होगा या पेरेंट को टिक मार्क करना है, जैसे कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो सारे टिक मार्क होते हैं सही सही, तो हम उनको गिफ्ट या ऐसे करके मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज ये, इसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेरेंट को समझना है कि अगर एक भी डिक्लेरेशन मिस किया तो उसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये करके। तो अगर वो पेरेंट समझेगा तो ही हम आगे ये करने का कोशिश करेंगे। सर इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप जो फेस कर रहे हो मैं खुद फेस कर रही हूँ, लेकिन एकदम पर्सनल रह के करना पड़ता है, ये हो पाएगा सर। लेकिन ये बहुत मुश्किल है सर, सबको कन्विंस करना और एक प्रॉपर से। आपने कहा कि बच्चे एडल्ट हैं, उनको तो समझा सकते हैं, पर दूसरे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स तो एडल्ट है ना। हाँ, तो पेरेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि ये अवयव कम हो सकते हैं। हम उनको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कैसे देते हैं? हम लोग अच्छे बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं
जैसे कि संगीता वाधवा मैडम है मुंबई में, या फिर जतिन सर है पुणे में, और ये सारे एग्जांपल्स देते हैं कि ये सारे जो लोग हैं जो इतना अच्छा फॉलो कर रहे हैं वो आज एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। मंजुला मैडम ने शादी की है, तो वो सारे एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि हाँ हम भी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो कभी मैम आप कभी एग्जांपल देते मैडम आप एग्जांपल देते हो, हम बच्चों को सामने खड़ा कर देते हैं कि ये देखो ये लड़की है, ये लेक्चरार लगी हुई है कॉलेज के अंदर, आपने भी ऐसा बनना है तो मेडिसिन लो, ढंग से लो, टाइम पे हाँ ब्लड। दिक्कत ये आती है कि HB 2, 3, 4 पर ले आते हैं ये लोग, और हाँ जबकि वो एक फोन के ऊपर ब्लड मिल जाता है, आज अभी फोन करें कल उनको ब्लड मिल जाएगा, करेक्ट। फिर भी नहीं सर, उनको थोड़ा सा डराना, कभी 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 पॉजिटिव, कभी डांट लगानी पड़ती है, और तभी वो थोड़ा इनको समझ, बहुत बहुत ही रेजिलिएंट होते हैं ये लोग, नहीं समझते। चलो एक नहीं सर, मीटिंग आपके साथ करवाएंगे कभी पक्का फरीदाबाद में, सर तब पक्का, मैं तो वेट कर रही हूँ, आप मुझे कब बुलाओगे। चलो श्योर, थैंक जल्दी यू बुलाते सो हैं। मच सर। थैंक यू। वंदना। Yes. नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मेरे पास 2 बच्चे हैं थैलीसीमिया के, जी तो मैम मैं उनको जैसे कि एक तो ना बेटे की थोड़ी हाइट भी कम है, जैसे वो 12 साल का हो चुका है, और जी। मैम जैसे मैं बेटा मेरा डेजिरॉक्स लेता है, उसको मैं कंटिन्यू 2 डेजिरॉक्स देती हूँ, और बेटी को कैल्फर डॉक्टर ने बताया है जैसे, तो कैल्फर जब मैं उसको देती हूँ तो सुबह जब मॉर्निंग में वो वॉशरूम जाती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे रेड रेड जाती है। हाँ, वो कैल्फर का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये घबराइए मत, ठीक है। ऐसे मेडिकेशन के बारे में बिना रिपोर्ट ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात करना ठीक नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप उसमें जो कुछ भी और बाकी के रिपोर्ट देख के आपसे बात करते। जी मैम आपकी वॉइस कट गई कि फिर बूंद फाउंडेशन को एक मेल डालिए या मैसेज डालिए जिसमें आपके दोनों बच्चे की हाइट, वेट और रिपोर्ट्स सारे हो, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। उनकी मैम रिपोर्ट्स डाल देनी है मुझे। ओके मैम। ओके ठीक है। जो ये आज नया ग्रुप आया है जो उस पे डालूं क्या? बूंद फाउंडेशन का मैसेज होगा ना आपके पास नंबर? हाँ फाउंडेशन अगर थैलीसीमिया वाला है। हाँ बराबर, उस पे डाल दीजिए आप। ओके मैम। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो हेलो मैम, एक और क्वेश्चन था मेरे पास। एक्चुअली जी। मेरी जो बच्ची है उसको टीनेज का इश्यू स्टार्ट हुआ है। मैंने ऑनलाइन देखा था किसका? डेसिरॉक्स से साइड इफेक्ट टिनिटस। हाँ, वो कभी कभी होता है लेकिन वो कम्प्लीटली रिजॉल्वेबल है, ठीक है। आप अपना मैसेज डाल दीजिएगा बूंद फाउंडेशन पे, मैं आगे के रिपोर्ट्स देख के आपसे वापस से बात करती ओके ओके, थैंक यू। और Okay, मैम well. प्लीज आप थोड़ा डिटेल्स भी दे सकते हो क्या, जो स्पॉन्सर्स आपने बोले HLA टेस्टिंग के लिए? जी बिल्कुल, person- मैं जो बूंद फाउंडेशन पे मैसेज डाल दूंगी वो आप सबको बता दें। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। Okay, ma'am, we have no further questions, so I will Okay. just unmute Shubhra once. Yes. I would like to thank Dr. Lisa for taking out such precious time from her routine and making time for our warriors. And I would like to thank everyone who attended this session and looking forward to such more wonderful sessions and informative sessions from you. Thank you everyone for joining in. Thank you Bund Foundation for giving me this platform. Thank you. And it is a learning point for me also, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब यहाँ वहाँ से information ये करके मुझे भी कभी कभी बहुत नए points मिलते हैं, and it is always nice to have such interactive session. मुझे लगता है मैं पूरे इंडिया के थैलेसेमिक्स के साथ बात कर रही हूँ, and it makes me a part of you and it makes a very big family. So thank you Bund Foundation for thinking of all this and conducting it so well. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank you. So we'll meet next Sunday. Next Sunday, yes. Yeah. Ganpati Bappa. Moria. Moria. Thank you.